Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is the second lecture for the course Business Intelligence. So in the last class, we discussed the history. We talked about data warehousing. Uh, what is data warehousing? So I hope all of you are clear on that concept. I also gave you a quiz. So today we'll go into a bit more detail of data warehousing. Okay. And we are also going to start the activities of exploratory data analysis. So I have my tablet configured, so it might take some time to adjust. So you'll have to bear with me if I make some errors on that. Just let me first. So we are talking about data warehousing. So the point is that all of us should understand why a data warehousing came into existence. In the quiz, I asked the question why did BI tools became important? But we should also understand that why data warehousing in the first place it became important for us. क्वेरीज नहीं क्वेरीज बोल रहा है यार क्विज नहीं बोल रहा है कोई क्वेश्चन समझ लिया था भाई मैं क्वेरीज बोल रहा है क्विज कहां से आया हाँ हाँ सही है फिर सही है जानी I would request you to mute your mics, please. So data warehousing basically involves two things. One are the facts. Okay. We also call them KPIs. And we also call them measures. I hope all of you are clear on that point. Yes, sir. And the other things that data warehousing involves are dimensions. So in the BI tool, this categorization is mostly autonomous. So the BI tool itself will do it. One other thing that we want to keep in mind is the date. Right? So the date typically is also a dimension. I told you last time. So the main, let me just clear this. So the main point about data warehousing is that we have a schema. So just call that. Let me just get my hands on this. So we have a schema we call that a star schema. So those of you who have not taken data warehousing, I'm just going to tell you about this very quickly. Okay. So basically, star schema is a very old. It's a relational model. It's like the database that you design. Okay. So it's a relational model. So in the center here, you have this table which is called a fact table. And these are the dimension tables. In this case, I have 4 dimension tables. And I told you last time that the purpose of warehousing is primarily to aggregate, not always, but primarily aggregate the KPIs. That's what you want to do. That's how the analysis is done basically. You want to aggregate the KPIs. So across the dimensions. I also wrote that last time, across the dimensions. Sir, can you explain aggregating the KPIs? Yeah, try to explain it. So let's take the example of flight, airline reservations, for example. Okay. Although the typical example is the sales example. So in the airline reservation scenario, what are the facts that I would want to aggregate? Can you tell me? कि what are the important facts जिनके ऊपर आपका revenue base करता है? एयरलाइन के अंदर कौन से वो फैक्ट्स कौन से हैं
जी Sir, miles traveled. नहीं, start with the basic ones. What is the And number of passengers. number of Sir, passengers number of passengers and and number of passengers? number of flights. Sir, ticket Number of price. flights भी होती है. Number of flights. सर बुकिंग्स मेड रिजर्वेशंस कैंसिल्ड ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है. Reservations cancelled, that's also something which is on the negative side, but still very important for the business, because that means the passenger is probably not going to travel with you. He might choose some other airline. So that's something which you want to monitor very clearly. And let's assume that we have the number of flights on a particular leg and we have the number of passengers. Okay, so these are the three things that I want to aggregate across some dimensions. So what could be the dimensions in this case? Sir, time, date, so date and location तो पहले आ जाएगी वो तो. Obviously, I probably told you that date dimension is always there. Okay. You might say, okay, what is the difference between date and time? But in our case, we assume we are just taking the date. So we have this format of month and day and year. Okay, so this is a. If you want to go into hours and minutes and seconds, like for example, you might need to do that in an e-commerce scenario. Then you have to make a separate table for time. So you have to make a separate dimension table for time if you want to analyze also across time. I can't push time within here, because then it is going to generate lots and lots of rows. So one row of the dimension table represents one date. Okay, so you should keep that in mind. Sir, quarter भी आ सकता है. नहीं, quarter has to do with the date. जो quarter है, quarter का तो ताल्लुक date के साथ है ना. Dates will make quarters. ठीक है, 7 dates will make a week, 30 dates will make a month, and obviously like 90 days will make one quarter. So quarter key information is derived from the date table here. It's not derived from the time table. So in this case, the dimension, the date dimension. So I'll just write that down here. One row of this dimension represents one date, या हमारे अल्फाज में one day. एक दिन की जो डेट होती है वो एक रो में आती है. If I talk about the timetable, then one row of the effective of the time dimension table is going to represent one what? बताएगा कोई? Sir, every second, I guess. One time. हर डेट के लिए बहुत सारी एंट्रीज होंगी टाइम की. One time का मतलब है कि you can measure that using the hour, minute, second. तो for example, पहली रो ये हो सकती है कि starting with 11 AM and 0 seconds, and आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं हर 1 मिनट के बाद टाइम रिकॉर्ड करूंगा for some reason, या हर 10 मिनट के बाद करूंगा. तो अगला डेट क्या आ जाएगा? 00. सेकंड्स को आप 0 ही रख रहे हैं. You are not going to the seconds detail. फिर अगला क्या हो जाएगा? 11:20:00 seconds. So in this way, one row of the timetable is going to represent one time, जो भी आपने टाइम सेट किया है. डे में तो हमारा जो ग्रैनुलरिटी है वो डिसाइड होती है. तो वही नो कि आज है, कल है, परसों है, तरसों है, उसके बाद है. तो वन रो इज गोइंग टू रिप्रेजेंट वन डे. ठीक है. सो जितने भी सर फ्लाइट रिजर्वेशन सिनेरियो में हमारे जो टाइम भी अगर हम देखें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ डिपार्चर और अराइवल टाइम्स नहीं है. तो हम सारी चीज़ ना लें तो भी चलेगा. Yeah, you're right. In the case of the airline reservation, time also is important because people are booking across the whole day. So I will take the timetable as well, but I will not go into the minutes. Okay, I will just take the hours.
because to make things simple, if you go into the minutes, then it will become very complicated, because there are hardly any business managers who would want to analyze after every 30 minutes the reservations. They will want to analyze maybe on a daily basis, but if you want to make it more granular for good airlines, then you can go to the hourly basis के एक घंटे में हमारी कितनी reservations हुई, इस घंटे में कितनी हुई, इन 6 घंटों में कितनी हुई. So in my सर case, घंटे के हिसाब से तो आई डोंट थिंक के रिजर्वेशंस होती हैं या होती हैं फिर. reservations देखें, if you have the website, then the reservations are open across the 24 hours. So I'm pretty sure that people across the globe are using the system 24 by 24 hours. तो daily basis के ऊपर कम से कम अगर हम system access भी लगाएं, because many people are cancelling the reservations as well. So अगर हम ये लगाएं कि how many people have accessed the system, ठीक है, तो उस केस में भी जो है ना वो we have to keep track on the hourly basis. कि ज्यादातर फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान से किस टाइम पे लोग ज्यादा रिजर्वेशंस करवा रहे हैं और यूएसए से किस टाइम पे लोग ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं. तो यस, इट माइट बी समथिंग व्हिच इज वर्दी ऑफ एनालिसिस, which is worthy of Okay, so this goes the same way as Kareem and Uber do with their peak factors thing. What they do is they do the analysis that these are the specific times when most of the audience is trying to book an Uber or Kareem. So what they do is they bring in the peak factor analysis. So इस तरीके का आप कुछ analysis absolutely. Kareem and Uber का जो scenario है, that is much more intensive than the airline scenario, because that is actually real time data, जो कि यानी किसी वक्त किसी मिनट भी आपकी करीम बुक हो सकती है. फ्लाइट्स का तो फिक्स टाइम होता है, ठीक है. So that is much more intensive and much more frequent than the airline reservations, like for example airlift and all those things. So उसके लिए तो लास्ट भी टाइम चाहिए. चलिए, let's assume that we have the date, we have the time, and what can be the third dimension जिसके across I will want to analyze these facts. What can be the third dimension? Location. Yeah, location. Because my flights are running from different, obviously from different cities, from different locations. So I will want to analyze across locations. For example, I might ask, what are the total number of passengers which booked their flight from Karachi and in the last 3 months. So in the last 3 months, I'm going to take from here. The Karachi I'm going to take from here, and the number of passengers are going to be here, but I'll talk about that later on. And what can be another dimension, please? Price. No, price is a numerical quantity. It is a Price potential. probably Price is I have to, in fact I did not write prices. That's a very good suggestion. So the sales or the payment made by the customer, obviously the जो उसने पैसे दिए हैं, that is more important. How much money he has paid you in reservation, that is also a very important fact. In fact, that is the most important fact that we want to analyze. So price is not a dimension. They're traveling, I assume ये भी होगा कि किस airline में लोग travel कर रहे हैं. Yeah, let's assume we are doing this for one particular airline. So yeah, customer is something जो कि हम कर सकते हैं, क्योंकि customers have their demographics like male, female, age group, frequent flyer, their frequent flyer data, their family information, how much they have been traveling with us. So all of this information is what I would want to analyze the facts across, because I might ask that how many female passengers have booked their flights from Karachi to Lahore, etc., in this particular time. I might ask that query, right? And I might ask के इस particular age group के अंदर कितने लोगों ने लाहौर से लेके मैनचेस्टर तक पिछले 1 साल में अपनी flights book कराई हैं, so that we can design the appropriate promotion strategies for this type of customers. So that's what we can actually Sir, I have a question. जी.
Sir, are you taking on-campus class as well? No, I'm not taking on-campus class because I don't think it's safe for all of us to move into the class right now. Sir, it is true, but some of the students are wandering around the campus and looking for your class, so that is why I was asking. Call आई थी एक लड़के की, was asking कि कहाँ पर हो रही है class. अच्छा, चलिए उनको बता दें कि क्लास तो ऑनलाइन ही मैंने परसों बताया भी था. I talked about it last time. So let's अच्छा move सर, on with the मैं lecture. We can discuss that afterwards. Okay. This is ये काफी वो हो गया है. So let me. Oh, sorry about that. So let me erase some of the things here. Sorry, my drawing is horrible as usual. So what we have talked about is that we have just put it here. Okay. So we talked about the date, we talked about the time, the location, and the customer. Okay. And we have talked about the fact that we want to aggregate these things across the dimensions. Aggregate these things. Okay. Across these dimensions, जो कि हमने 4 dimensions analyze किए हैं. So you have to realize that inside the dimension table, one row represents one entity. So one time, one date, one particular location or उसके attributes, one particular customer and his or her attributes. So that's what we have to understand. Okay. And what happens is that obviously the primary keys of these tables become the foreign key. Okay. Of this fact table. So all 4 primary keys will become the foreign keys here. And then after that, we have the facts. Because I'll just redraw this. I think this is becoming quite. Excuse me, sir, I have a question. जी. Sir, can you आपने वो raise कर दिया था, मैंने पूछा था कि सर जो date, time, are these columns or are these tables? These are tables. Like I told you, this is the central table, which is called the fact table. I'll just write F here. Okay. And I have 4 tables which are, in this case, I have 4 tables which are connected. And this connection is basically modeling the across thing, जो कि मैंने आपको बताई थी ना. I told you to remember this word across. So this connection is basically modeling this across word. So I want to analyze the facts or the KPIs across dimensions, and each of the dimension has a table. So you have been able to identify 4 dimensions up to now: date, time, location, and customer. I might also have a dimension of flights, because flight is also something जिसके plus मेरी dimension. I have a flight information like PK 307, PK I don't know 248, PK 534. So all of these are flights, and I would want to analyze my sales across these flights. Right? It's not just across dimension, across customer and locations, but this is the most important table, which is the dimension table. It is called the flight dimension table. So in this table, one row represents one flight that I'm operating. For example, I have a flight PK 399 from Karachi to New York. Okay. So if I make the flight dimension table, so चलें ये बताएं कि what can be the potential attributes of the flight table? Sir, destination. Obviously, there from will be the the primary key जो कि एक to number होगा, flight number, PK. सर from होगा, 2 होगा, Sir, business होगा. class, first class, Nomi. नहीं, business class, first class. Okay, it can be a Boolean variable कि whether business class इस flight में है या नहीं, ठीक है? जी, वही बात. और first ये तो business class तो होती है. I can't do that, right? Yes, Business sir, class is Boolean always हो there. नहीं सकता. हाँ. We always have those classes जो कि सर टिकट प्राइस लिख सकते क्लास की.
तो सर हम ये कैसे नहीं, बताएंगे देखें कि देखें कौन सा डायमेंशन, पैसेंजर उसने क्या सिलेक्ट किया? नहीं नहीं नहीं, जो पीआईए या एमिरेट्स एक फ्लाइट अपनी चलाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दुबई टू रियो डी जेनेरो, ठीक है, वो एक फ्लाइट है, तो उसके एट्रीब्यूट्स बताएं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे हो सकते हैं? नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो रिजर्वेशन में आएंगे ना। फ्लाइट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सोर्स, कहाँ से चलती है, कहाँ पर जाती है, डेस्टिनेशन, ओके, एंड देन And number of hops. तो नंबर अनफिल्ड यस, सीट्स हो सकता है फ्लाइट बिल्कुल, में। नंबर ऑफ हॉप्स के उसमें कितने ट्रांजिट स्टॉप्स होते हैं, उसके अलावा माइल्स, व्हाट इज द डिस्टेंस इन माइल्स, व्हाट इज द डिस्टेंस इन माइल्स, ओके। फिर आप इस फ्लाइट को किस एयरक्राफ्ट पे चलाते हैं, because we have two aircrafts these days, we have Airbus and we have Boeing typically जो चलते हैं, तो एयरक्राफ्ट कौन सा है? In this way you can figure out many other variables जो कि आपको डोमेन नॉलेज से मिलेगा, ठीक है। तो you can get the domain knowledge to understand के फ्लाइट के, तो फॉर एग्जांपल, sorry about that, okay, let me make the first row, please प्रकाश अपना माइक म्यूट कर लें। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा सीरियल नंबर 1 है, फ्लाइट का नंबर है PK 599 और सोर्स इज लेट्स से न्यूयॉर्क, डेस्टिनेशन इज लेट्स से लंदन, और ये मैंने क्या लिखा, हाँ, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ हॉप्स हॉर्स हैं, कितने हैं, probably तो आप हॉप्स इसमें बता इसमें देंगे 2 कितने हैं, हैं। कितने माइल्स हैं, लेट्स से कि वी हैव 4000 माइल्स जो कि कवर हो रहे हैं इसमें, और इसमें एयरक्राफ्ट कौन सा यूज हो रहा है, तो आई एम यूजिंग बोइंग 737 फॉर एग्जांपल, और क्या कहते हैं, कितनी दफा ये सर फ्लाइट फ्लाइट चलती है। ड्यूरेशन भी तो आ सकता है सर। हाँ, ड्यूरेशन भी आ सकता है, बिल्कुल ड्यूरेशन भी आ सकता है। ड्यूरेशन को मैं क्वांटिफाई करके एक ही नंबर में लिख दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 आवर्स और 4 आवर्स और समथिंग लाइक दैट, और फिर मैंने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यू कैन टॉक अबाउट द कैबिन क्रू की क्या रिक्वायरमेंट है, यू कैन टॉक अबाउट द फैसिलिटीज जो कि उस फ्लाइट पे आपको मिलती हैं, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स जिसके अक्रॉस आई वुड वांट टू एनालाइज द सेल्स। फॉर एग्जांपल आई कैन से कि what are the total sales for all the flights going from New York to London, and it might not be just one flight, there might be several flights, okay, so what are the total sales for flights that are going from New York to London and which have these facilities on their plane, so that's a query जो कि मैं इस dimension table के through answer कर सकता हूँ, ठीक है। तो सो डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम भी आएगा ना? yes you are right, और ये मैंने टॉक वेयर हाउसिंग, उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम आया था कि इन दिस केस मैंने जब मैंने यहाँ पर एक डेट का टेबल बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइम का टेबल बनाया है, तो आई वुड वांट टू मेक अ टेबल फॉर द a separate table for the departure time and a separate dimension table for the arrival time, क्योंकि these are two different times, right? मैंने कराची में पूरा दिन फ्लाइट्स अराइव करती रहती हैं, तो मेरे लिए अराइवल टाइम इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम से इस टाइम में मेरे पास कितनी फ्लाइटें लैंड की, अगर मैं एनालिसिस करना चाहूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मेरा मतलब है कि एक स्पेसिफिक फ्लाइट है तो उसकी तो एक होगा ना डिपार्चर टाइम, एक जैसे कि हम सेलिन एयर के एक फ्लाइट बुक करते हैं तो उसकी डिपार्चर टाइम हमें वी नो द डिपार्चर टाइम एंड द अराइवल टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लाइट। जी वो है, वो स्पेसिफिक टाइम होता है, लेकिन हमारी टेंडेंसी वेयरहाउसिंग में ये होती है कि अगर हमने उस टाइम को एनालिसिस करना है, इफ आई वांट टू एनालाइज दैट टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम द एयरपोर्ट्स एविएशन, ठीक है, और आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट के सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हाउ मेनी फ्लाइट्स वर लैंडिंग डे ऑन अ डेली बेसिस इन द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, दैट इज अ क्वेरी जो कि मैं जानना चाहूंगा फॉर सम रीजन कि मैंने एयरपोर्ट की मैनेजमेंट करनी है और सिक्योरिटी के लिए मैं जानना चाह सकता हूँ। तो उस केस में इट विल बी बेटर टू हैव
a separate dimension for arrival time and a separate dimension for departure time with respect to the airport. जहां तक फ्लाइट का ताल्लुक है तो मैं पर्सनली फ्लाइट के टेबल में अराइवल डिपार्चर टाइम नहीं डालूंगा, मैं ये डाल दूंगा कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है फ्लाइट की, व्हाट इज द ड्यूरेशन। अगर मुझे डालना ही है तो आई विल मेक अ सेपरेट टेबल फॉर द डिपार्चर टाइम एंड द अराइवल टाइम। अब आप कहेंगे कि भाई लिंक कैसे होगा, कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर है, उसका डिपार्चर अराइवल टाइम यहाँ पर है, उसका डिपार्चर टाइम यहाँ पर है, तो लिंक कैसे होगा? तो लिंक जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर आके लिंक हो रही हैं। तो फैक्ट टेबल में सारे डायमेंशन टेबल की फॉरेन कीज आएंगी, तो वहां से इस पर्टिकुलर फ्लाइट को अगर रिजर्वेशन की गई है तो फैक्ट टेबल में उसकी एक रो बन जाएगी, ठीक है। और फिर उस रो में मैं जब इस फ्लाइट का डेटा आएगा उसमें फिर टाइम और अराइवल का भी फॉरेन की आएगी, तो इसमें मैं वो टाइम और अराइवल डाल दूंगा कि इस फ्लाइट का ये टाइम था, डिपार्चर का ये टाइम था, अराइवल का। सो वी टिपिकली हमारी सर जी सर फैक्ट टेबल के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे सर, ये समझ नहीं आ रहा। ये आपके सामने लिखे तो हैं। मतलब सर तो फैक्ट टेबल में मतलब सारे टाइम, फ्लाइट और ये सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे इसके? नहीं, और मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि फ्लाइट टेबल के अंदर जो है वो हम टाइम को नहीं इंसर्ट करते। जैसे फॉर मैं एग्जांपल आप फैक्ट टेबल क्यों पूछ रहा हूँ सर? अगर आप टीसीएस वालों के लिए डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं या बीआई कर रहे हैं टीसीएस वालों के लिए, ठीक है, इफ यू आर डूइंग इट फॉर द टीसीएस गाइस, तो टीसीएस में packages are leaving every day all the time and coming every day all the time, almost हर घंटे में कोई ना कोई उनकी एक्टिविटी होती होगी। तो मैं फिर जो टीसीएस का कोई भी डायमेंशन टेबल के अंदर मैं टाइम इंफॉर्मेशन नहीं डालूंगा, मैं ये करूंगा कि आई विल मेक अ सेपरेट टेबल फॉर टाइम, और उसको फिर मैं जो बीआई के अंदर अलग से आई विल पुट दैट फॉर एनालिसिस। दैट इज द ट्रेडिशन दैट वी हैव टू फॉलो, कि जितने भी डिफरेंट टाइम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिपिंग टाइम और डिलीवरी टाइम, ठीक है, शिपिंग टाइम और डिलीवरी टाइम में फर्क होता है, तो आई विल मेक अ सेपरेट टेबल फॉर द शिपिंग टाइम एंड अ सेपरेट टेबल फॉर द डिलीवरी टाइम, ताकि मैं उसको क्वेरीज में अलग से उस पर वो कर सकूं, उस पर सवालात कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकूंगा कि हाउ मेनी पैकेजेस वर डिलीवर्ड, how many packages were dispatched in this particular shipping time at this particular time, कि इस टाइम से इस टाइम तक कितने पैकेजेस हमारे निकले, ठीक है। और फिर डिलीवरी टाइम में कि इस टाइम पे हमारे कितने पैकेजेस डिलीवर हुए। और आई माइट ऑल्सो हैव समथिंग लाइक कि मेरी डिलीवरी टाइम पे हुई कि नहीं हुई, तो वो फिर मैं ऑब्वियसली जो मैंने डेट दी थी कस्टमर को और इसको इसमें से माइनस करके उसके साथ कंपेयर करके आई कैन क्रिएट अ सेपरेट कॉलम जिसको मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी सर अभी एक फिलहाल टेबल में क्यों नहीं हो सकते टाइम्स? सॉरी, एक ही टेबल में टाइम्स क्यों नहीं हो सकते, कि अगर हम एक टाइम का टेबल बनाएं और उसी में अराइवल और डिपार्चर दोनों हो? देखें, एक ही टेबल में टाइम इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज I am not 100% sure that this flight is always going to operate on the same time for a large number of years. I might be changing the time of this flight on a monthly basis due to the fact कि कुछ कस्टमर की तरफ से कोई डिले आ रहा है, कोई एयरपोर्ट फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फ्लाइट कितने बजे चली और कितने बजे पहुंची, ये तो आपका एक ही फ्लाइट में तो आपका बहुत डाइवर्स डेटा हो सकता है बिकॉज फ्लाइट्स टिपिकली गेट डिलेड, ठीक है। तो मैं अगर इसी टेबल में डाल तो दूंगा वो कि रोज अपडेट नहीं कर सकते हम? नहीं, इसमें वेयर हाउसिंग के अंदर जो है ना, वी आर नॉट, वी डोंट तो हैव वही दैट। एडिंग न्यू रोज? No, this is not a transactional table, this is an analytical table, okay, and Okay. these dimension tables might contain the data for 5 years, and they might contain several hundred thousands of rows or even millions of rows in some instances, especially जो आपका fact table है, वो तो लाजमी बात ये कि it might contain millions of rows if you go for a 5-year scenario in e-commerce stuff, for example. So I don't typically update the dimension tables that frequently. I can update, लेकिन it is a very unsophisticated thing.
सही है कि मैं बार बार एक फ्लाइट की इंफॉर्मेशन जाके इतने बड़े टेबल में चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो डेटा आया है वो एनालिसिस के लिए आया है, एंड इट इज क्लीन, it is wrangled, it is clean, everything is fine. Okay, and I have done a lot of effort in moving the data from my database to the data warehouse. So you have to keep that in mind. I can't go into nitty-gritty details, but a warehouse is a database for analysis. It is not meant for operational things like आज ये रो डाल दो, कल ये रो अपडेट कर दो, आज ये नया टेबल बना दो, कल ये वाला टेबल डिलीट कर दो. ये तो हमारा टिपिकल सिनेरियो है आपका कंपनीज का, राइट? But we can't do this in a data warehouse. Data warehouse is something which is quite consider that as a sleeping hibernating bear. सही है कि एक बियर आपका हाइबरनेट कर रहा है, तो it hardly moves and it is something which is very powerful. So I don't want to touch it that much. I don't want to budge it that much, but still it is very useful. सही है. तो डायमेंशन टेबल्स में हम वो डेटा डालते हैं जिसके अक्रॉस हमने एनालाइज करना हो, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग. फॉर एग्जांपल शिपिंग टाइम चेंज हो रहा है. अब अगर आप नो वन कैन से इन टीसीएस फॉर एग्जांपल जी सर हम ग्रैन्युलैरिटी एक डिसाइड कर सकते हैं ना टाइम की, जैसे फॉर एग्जांपल मिनट तो हमने 24 घंटे मतलब 0 से स्टार्ट करके 24 तक हर मिनट की जो है वो रो डाल दी है. फिर हमारी फ्लाइट में जैसे आई कि इस टाइम पे ये जाएगी तो वो वाली रो की हमने फॉरेन की यहाँ पे डाल दी. तो ये नहीं कर सकते बजाय इसके कि अराइवल टाइम हम पहले ढूंढने के कितने पॉसिबल अराइवल टाइम है उसका अलग डायमेंशन और नहीं डिपार्चर टाइम इस टाइप हम की. नहीं हम ये नहीं कह रहे कि कितने पॉसिबल अराइवल टाइम है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब मैं एक फैक्ट टेबल की रो बनाऊंगा, ठीक है, तो फैक्ट टेबल की एक रो, फॉर एग्जांपल आई एम एनालाइजिंग के a particular let's say के वन बुकिंग और रिजर्वेशन आप कह लें, ठीक है, तो उसके अंदर एक तो 4 फॉरेन कीज मेरे पास आएंगी इस केस में, ठीक है. जो बुकिंग हुई है वो किसी पर्टिकुलर डेट को हुई, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम को हुई अगर आप टाइम भी कर रहे हैं, और किसी कस्टमर ने की और उसने किसी लोकेशन से की, ठीक है. 4 चीजें तो ये हो गई. अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ गया कि फ्लाइट की इंफॉर्मेशन आ गई. वी हैव द फ्लाइट इंफॉर्मेशन. तो इन दिस केस व्हाट आई कैन डू इज के मैं कह सकता हूँ कि भाई ये फ्लाइट थी, ठीक है. अब फ्लाइट के टेबल में मैंने उसका टाइम नहीं लिखा, मैंने कहा कि उसके लिए आप एक अलग डायमेंशन टेबल बना लें, ठीक है. ये फ्लाइट थी. इफ आई हैव अ सेपरेट डायमेंशन टेबल कि वो फ्लाइट कब चली, कब लैंड की, ठीक है. आई हैव अ सेपरेट टेबल फॉर द डिपार्चर टाइम एंड अ सेपरेट टेबल फॉर द अराइवल टाइम. सो जाहिर सी बात है सारे डायमेंशन टेबल्स की प्राइमरी कीज यहाँ पर फॉरेन कीज बनेगी. ये बात तो क्लियर है ना. So therefore I also have to put the data for the departure and arrival, and I can put that. सही है, I can put that कि इतने बजे चली, इतने बजे गई, उसमें इतने, और फिर जो उसमें प्राइस कितनी पे की गई वो ये प्राइस थी. So ये मेरा फैक्ट टेबल हो गया. फैक्ट टेबल में सारे डायमेंशन टेबल्स की पहले फॉरेन कीज आती हैं और फिर उसके बाद फैक्ट्स आ जाते हैं. That is the process that you need to understand. So what I'm trying to explain to you guys is that in the case of the flight reservation, we should not put the departure and arrival time in the dimension table. For example, if the flight is PK 599, someone made a reservation for PK 599. ये particular flight जो है ये आपकी चली, for example आप कह लें कि actually जब हुआ ये काम ना, तो ये for example ये चली 3 बजे चली और let's say के रात के 12 बजे वहां पहुंची local time, ठीक है. अच्छा, someone else made a reservation for the same flight, so this is a separate row, and this particular flight जो है ये चली 3:15 बजे और वहां पहुंची रात के 12:30 बजे. तो मैं ये नहीं कह सकता कि 599 का डिपार्चर अराइवल टाइम हमारे हमेशा सेम रहेगा. समझ में आ रही बात की? फॉर मी इफ आई वांट टू एनालाइज अ फ्लाइट, द फ्लाइट नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और एक ही फ्लाइट जो है इट माइट move at different times, it might depart at different times, it might, और ये भी हो सकता है कि मैं उसका डिपार्चर टाइम 3 बजे बंद करके शाम 6 बजे कर दूं.
तो फिर मैं बार बार मुझे इस डायमेंशन टेबल में आके चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, विच आई डोंट वांट दैट टू हैपन. On the contrary, if I have a separate dimension table for departure time and a separate dimension table for arrival time, तो I can have all the times in that, और जो भी टाइम उस वक्त उस फ्लाइट से मैच कर रहा होगा वो मेरे फैक्ट टेबल की रो में आ जाएगा. As simple as that. सही है? समझ में आ रही बात की? Excuse me, सर हम sir. उसको ऐसे कैटेगराइज भी कर सकते हैं, schedule time of the flight and then what actually, मतलब the current time हाँ बिल्कुल, जिस we पे वो can, वाकई में यहाँ तो अराइव हम हुआ बहुत सारी वाकई चीजें कंपेयर कर सकते हैं कि टोटल टाइम कितना था, लेट हो गई फ्लाइट कि नहीं हुई, डिपेंड, क्योंकि हमारे पास तो डेटा है, हम अपने वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं. बट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि when you have things moving at different times, then it is better for you to create a separate timetable with respect to your domain जो कि जिसमें आप काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉजिस्टिक्स के लिए काम कर रहा हूँ, then I will make a dimension table for shipping time. I will make a dimension table for order time, a separate table for shipping time, and a separate table for delivery time. ठीक है, क्योंकि मैं तीनों को अलग अलग एनालिसिस करना चाहता हूँ फॉर सम रीजन कि मेरी क्वेरीज उस तरह आ रही हैं. इट जस्ट गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी. और अगर कोई मैनेजर कहता है कि नहीं यार मुझे नहीं देखना है, मुझे बस टोटल ड्यूरेशन बता दो, then it's okay. I can just delete these two dimension tables. If it is not needed by the management, I can remove these dimension tables. And when it is needed, I can add them. ये बात भी आप. Sir, I have a question. एक सेकंड मैं बताता हूँ, just give me some time. ये बात भी याद रखें कि if you include the time here, then you are forcing the time into the analysis. If I don't want to analyze the time, I don't want to analyze कि फ्लाइट कब चली थी, कब. I just want to analyze के क्या कहते हैं वो उसकी ड्यूरेशन क्या है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, तो मैं फिर जबरदस्ती बीच में टाइम क्यों डालूं जब मेरा वो एनालिसिस का वो है ही नहीं फोकस. जब मेरा एनालिसिस का फोकस बनेगा, आई कैन पुट द डायमेंशन टेबल्स and attach them with this fact table, and then I can start analyzing them. That's also more convenient. So please, you can listen to the video again. You have to absolutely get this point कि the time is preferably it should be separated in a separate dimension table. जी हमराज. सर मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरीके से हम टाइम को इस फ्लाइट टेबल में नहीं डाल रहे क्योंकि बार बार चेंज नहीं करना चाहते, उसी तरीके से सोर्स और डेस्टिनेशन को भी अलग टेबल में नहीं रख सकते एज ए लोकेशन. नहीं देखें, when I said कि you have a flight number, तो the way airlines work जो मेरा नॉलेज है, तो every flight जो कि उन्होंने ऑपरेट करनी होती है उसका एक फ्लाइट नंबर होता है, और वो फ्लाइट नंबर में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि ये फ्लाइट कहाँ से चलेगी और कहाँ जाएगी. ये नहीं हो सकता कि 599 फ्लाइट नंबर मैं किसी और लेग को दे दूं. That is not possible. If I am saying PK 307, then that means definitely कि this is the flight जो कि कराची से चलती है और लाहौर जाती है सुबह के टाइम. ये डेफिनेट है. ये तो यानी उनके ऑपरेशंस का सबसे पहला काम मेरे ख्याल में यही होता होगा. सो ये इस केस में हमें अलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है. हाँ, कितने बजे चलती है ये भी ज्यादातर चेंज नहीं होता, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप डिलेज वगैरह का वो काम करना चाह रहे हैं कि कितना डिले हुआ क्या हुआ, तो फिर एक्चुअल टाइम के लिए बेहतर यही है कि आप एक अलग डायमेंशन टेबल बना लें. सर आई थिंक ज़्यादा मसला इसलिए भी हो रहा है बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को थोड़ी सी नॉलेज कम है इस बिजनेस मॉडल के बारे में. बिकॉज अगर लाइक सबको पता होना कि स्केड्यूल फ्लाइट्स हैं और ये चेंज नहीं होती, मतलब पहले से स्केड्यूल करके रखते हैं, तो फिर भी शायद रिलेटिवली कंफ्यूजन कम हो. हाँ मतलब देखिए, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट विल बी माय प्रेफरेंस. यानी आई वुड वांट टू ऐड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इन द फ्लाइट टेबल, but the actual departure and arrival time I will want to put that in two separate tables. I will do that. If you want to do, you can do it, but you must be sure then that departure and arrival times are not changing that much. ठीक है. ठीक है सर, ये आप इसके बारे में बता सकते हैं प्राइस का डायमेंशन टेबल ये अलग एक है? नहीं देखें, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो चीजें आपके रेवेन्यू से कनेक्टेड होती हैं उनको हम कहते हैं फैक्ट्स. So we don't say about the price. We say कि payment कितनी हुई है, sales. So sales is the same as the price, right? जो price है वो sales है. ठीक है. तो जब when we जब हम retail store का analysis करते हैं, we don't say कि यार इसकी कीमत क्या थी, इसकी कीमत क्या थी. हम ये कहते हैं कि यार बताओ बिका कितना है. ठीक है.
So we have to identify the facts. Facts are those variables which are directly connected to your revenue. और ये हर बिजनेस के अंदर आप इनको मालूम कर सकते हैं. Directly connected, oh sorry about that, to your revenue. And you can सर आई find थिंक out. ये बताना सर मेरे ख्याल से ये बताना शायद थोड़ा सा ज़रूरी है कि हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हम लोग जो डाटा वेयरहाउसिंग कर रहे हैं वो किस पर्पस से कर रहे हैं. तो किस पर्पस से कर रहे हैं और उस पर्पस के हिसाब से क्या KPIs होंगी, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आज आसानी से कि हमारे फैक्ट्स क्या होंगे. जी जी, ये मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, और आज भी मैंने सबसे पहली चीज वही लिखी कि एनालाइज KPIs across dimensions. ये एनालिसिस का सबसे पहला तरीका है बिफोर यू गो इनटू डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इवन BI. इवन SQL में ये मैं काम करता रहता हूँ, लेकिन SQL का प्रॉब्लम ये है कि वो इट इज नॉट एन एनालिटिकल लैंग्वेज, देयरफॉर आई हैव टू डिजाइन अ वेयरहाउस. ठीक है, ये तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि दिस इज द वे एनालिसिस इज डन. Every business has KPIs, every business has dimensions, and the first thing that the business managers want is to analyze the KPIs across dimensions. अच्छा, अली आप हैं यहाँ पे? जी सर मैं ही हूँ. हाँ चलें, जरा आप बता दें 5 मिनट, मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, मेरा आज रोजा भी है असल में. तो चले आप थोड़ा सा सही एक्सप्लेन सर कर दें क्लास को. सही ओके. तो सो बेसिकली आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है कि हम लोग डेटा वेयरहाउसिंग क्यों कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एयरलाइन है, तो एयरलाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकती है. सो लेट्स हमारी एक एयरलाइन है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई ग्रेजुअली सेल्स डिक्रीज हो रही है, या फिर हो सकता है स्टॉक्स डिक्रीज हो रहे हैं. तो कोई उसके बहुत सारे रीजंस होंगे. अब वो रीजंस क्या है, यूजुअली बिजनेस मैनेजर्स बताते हैं. अगर हमारे पास बैकग्राउंड बिजनेस नॉलेज नहीं है, या फिर हम उन्हीं की एयरलाइन का पार्ट नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगा. तो हमें पहले उसकी डोमेन नॉलेज बनानी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है. तो हम लोग जाएंगे, बाकी डिफरेंट सोर्सेज को देखेंगे कि भाई क्या हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं. जब हम अपनी नॉलेज गेन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि अच्छा हमें ये चीज़ें पता है, ये इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या इश्यूज किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं. आप उस बेसिस के ऊपर कि भाई लेट्स से हमारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, वेब एनालिसिस कर लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कमेंट्स वगैरह जो हैं उनकी क्या पॉजिटिव रेट है, क्या नेगेटिव रेट है, किस फ्लाइट में उनको ज़्यादा मसला हो रहा है, कोई रिव्यूज़ हैं, कोई ऐसी वेबसाइट्स तो नहीं है जो लेट्स से कि बेटर टिकट्स प्रोवाइड करी हैं विद लोअर कॉस्ट. तो हम उनको एनालाइज करें, वेब डाटा उठाएं, स्टफ लाइक दैट. तो हम लोग पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग किस वजह से कर रहे हैं डेटा एनालिसिस. सो लेट्स से कि हम इतना वेब एनालिसिस में नहीं जाते, हम लोग अपना ही डाटा उठाते हैं एंड वी सी के भाई हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कितनी वो कैंसिलेशंस करवा रहे हैं और क्या रीजन है, कौन बुकिंग एजेंट्स वगैरह हैं. तो हमने डिसाइड किया कि भाई KPIs हमारी होंगी कि हमारी कैंसिलेशंस कितनी हो रही हैं, और लेट्स से कि हमारे कितनी फ्लाइट्स हैं डिले हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी. हम ये इस एजम्पशन पे अभी इस केस को लेके बिल्ड कर रहे हैं. तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई कितनी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कितनी रिजर्वेशंस कैंसिल हो रही हैं. अब हम फैक्ट्स पे जब जाएंगे तो हम इसी बेसिस के ऊपर जाएंगे कि भाई अच्छा तो हमारी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, तो भाई कितना डिले हो रही हैं, उससे कितना लॉस पड़ रहा है, कितने कस्टमर्स, कितनी बड़ी बड़ी रिजर्वेशन है, इसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं. अब जब हमने ये KPI डिसाइड कर लिया, तो अब इन KPIs के मुताबिक हम लोग बनाएंगे डायमेंशनल टेबल्स. फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया ना कि हमारी किसी रिजर्वेशन कैंसिल हुई है, तो अब जो हमारा डायमेंशन टेबल बनेगा, तो पहला तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन टेबल का ही बनेगा, उसमें रिजर्वेशन टेबल की ही डिटेल्स होंगी. सिमिलरली जो मैंने दूसरा कहा, दूसरा KPI मैंने क्या कहा है, नंबर ऑफ पीपल इन द सिंगल रिजर्वेशन. अच्छा, इससे पहले हमें एक और चीज डिसाइड करनी पड़ती है कि हमारा ग्रेन क्या है. लेट्स से कि अभी जो हम लोग अभी सर की जो एग्जांपल ले रहे थे, उसमें हमारा ग्रेन था आई थिंक हमारा ग्रेन था 1 रिजर्वेशन. आई नॉट श्योर, मैं भूल गया हूँ बिल्कुल ही. खैर, तो हमारी इस वाली एग्जांपल में एक It's रिजर्वेशन okay. हमारा एक ग्रेन बनेगा. सॉरी, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले आई गेस. अली, KPIs से dimensions बनते हैं, like ओके हाँ, मैं बताता हूँ. सो अभी हमारे KPIs हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, के इससे हमें पता चलेगा कि भाई क्या इशू है. फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया भाई टोटल नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स हैं उस रिजर्वेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है हमारे सेल्स का नीचे जाने में या स्टॉक्स का नीचे जाने के अंदर. सही. तो अब मैं देखूंगा कि ये वैल्यू मैं कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. क्या ये वैल्यू मैं एक्सट्रैक्ट कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता. अगर ये वैल्यू मेरे किसी ऑलरेडी
ओके सो ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर किसी टेबल के अंदर है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टेबल को ले आऊं डेटा मार्ट के अंदर, अब जो हम लोग डेटा वेयरहाउसिंग करें, और फिर उस वैल्यू को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँ और डायरेक्टली शो कर दूँ फैक्ट टेबल के अंदर। और अगर मैं वो नहीं कर सकता, लेट्स अज्यूम मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है कि मैं लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि लॉस तो हम लोग सेव नहीं करते, हमें कैलकुलेट ही करना पड़ता है पर फ्लाइट के भाई ये इस फ्लाइट के ऊपर इतनी रिजर्वेशन थी, इतनी कैंसिल हो गई, तो अगर देखा जाए तो हमारा लॉस पोटेंशियल टर्म्स में इतना हुआ है, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो जो वैल्यूज़ आ रही है ना, जिन जो जो वैल्यूज़ मुझे रिक्वायर्ड है वो स्पेशल कॉलम कैलकुलेट करने के लिए, वो उन सारे टेबल्स को मुझे कैटर करना पड़ेगा इन वन वे और द अदर। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे पूरा टेबल उठाने पड़ेगा, बिकॉज अब हम ये पूरा नया अलग से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई अपना कस्टम टेबल बनाओ, अब मैं कहूँ ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं खुद से बना सकता हूँ, गिवन कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी और क्या चीज़ें हैं। आई गेस तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है। अली के आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट के अली ने एक्सप्लेनेशन दी है। आपको ये बात समझना जरूरी है कि जो डायमेंशन टेबल के अंदर जो बात की गई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है कि डायमेंशन टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके अक्रॉस हम केपीआईज को एनालाइज करते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में कहा था कि सबको केपीआई का पता है कि केपीआई क्या होती है। एवरी बिजनेस हैज अ केपीआई, राइट? तो एनालिसिस का सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि आई एनालाइज माय केपीआईज अक्रॉस डायमेंशंस। और मैंने परसों जो है आपको एग्जांपल्स भी लिख के बताई थी। अब ये वेयर हाउसिंग का जो मॉडल है, ये जो स्टार स्कीमा है, दिस इज बेसिकली द वे टू डू दैट। और जैसे अली ने कहा है कि हमें दिस इज अ सेपरेट डेटाबेस, जो मैंने परसों भी बताया था, यू हैव टू क्रिएट इट सेपरेटली फ्रॉम द ऑपरेशनल डेटाबेस। जो आपका आईटी वाले डेटाबेस मेंटेन करते हैं, दैट्स अ सेपरेट डेटाबेस, यू हैव टू क्रिएट दिस सेपरेटली। और बीच में यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज बिफोर यू कैन मेक दिस। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड है कि लेट्स से कि आपका ये दिस इज योर ऑपरेशनल डेटाबेस, जो कि ऑरेकल का हो सकता है। दिस इज योर डेटा वेयरहाउस विच इज ऑल्सो अ डेटाबेस, जिसमें स्टार स्कीमा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बीच में आप यू कैन डू दिस ईडीए एक्टिविटीज, जिसमें यू हैव टू क्लीन द डेटा, यू हैव टू रैंगल इट। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा, स्टैटिस्टिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर आते हैं ना, तो डेटा इज रेडी फॉर एनालिसिस। This data here is not ready for analysis, क्योंकि typically जो raw data होता है that is very dirty. तो I can't make BI के charts में नहीं बना सकता dirty data में, if it has missing values, it has data entry errors, मैं नहीं कर सकता। तो मुझे पहले data को साफ करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो this is what is done। तो ये हम करेंगे, ठीक है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज हम वेयर हाउसिंग की बहुत ज्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। अली ने जो सारी बात बताई है उसका लबोलवाब ये है कि that's you always have a business problem that you want to solve. ठीक है। For example, why would I do data warehousing in the flight scenario? I would do that because मेरी सेल्स कम होना शुरू हो गई है। मुझे ओवरऑल सेल्स का पता चला है, जो कि मुझे एसक्यूएल से भी पता चल सकता है कि मेरी सेल्स कम हो रही हैं। तो आई वुड वांट टू एनालाइज कि भाई क्यों कम हो रही हैं। तो एनालिसिस करने के लिए आई हैव टू गो डीप इनटू माय डेटा। सही है। तो दिस स्टार स्कीमा का जो मॉडल है ना, इट अलाउज यू टू गो डीप इनटू योर डेटा थ्रू क्वेरीज, जो कि हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि यार ये सेल्स कहाँ से कम हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल सेल्स कराची की निकालो, लाहौर की निकालो, इस्लामाबाद की निकालो। तो पता चला कि इस्लामाबाद की टोटल सेल्स जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम हो गई, कराची लाहौर की बराबर है। तो पता चला कि प्रॉब्लम इस्लामाबाद में है। अब मैं मजीद इस्लामाबाद को ड्रिल डाउन करता हूँ कि बताएं कि कितनी फ्लाइट्स इस्लामाबाद से चली एट दिस टाइम गोइंग फ्रॉम लंदन टू लाहौर। ठीक है। इससे मैं डिफरेंट लैग्स एनालिसिस करना शुरू करूंगा, जो कि मुझे स्टार स्कीमा अलाउ करेगा करने के लिए। आई एम ड्रिलिंग डाउन इनटू माय डेटा। और यही चीज आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल से अब करते हैं।
क्योंकि जो मैंने आपको जो क्विज दिया था, मैंने चेक तो नहीं किया अभी, उसमें एक सवाल यही था कि यार ये BI टूल्स की क्या जरूरत पेश आई है। तो प्रॉब्लम इस के अगर मैं स्टार स्कीमा बनाता हूँ, स्टार स्कीमा बनाना, ये सब काम करना है काफी मुश्किल काम होता है, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट अ सेपरेट डेटाबेस, आई हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ EDA स्टफ हियर, आई हैव टू डू लॉट एंड लॉट ऑफ प्लानिंग हियर, ठीक है, बिफोर आई कैन क्रिएट अ वेयरहाउस व्हिच इज अप एंड रनिंग। And I might not even have a one warehouse, I might have 3 or 4 warehouses at the same time, जिनको हम data marts भी कहते हैं, ठीक है, we also call them data marts. If I have many small warehouses, then I call them data marts. I want to call them data marts. So the point is that it is BI very के अंदर difficult to create data marts because it involves a lot of activity. उसके लिए काफी planning करनी पड़ती है. It's a resource intensive process. So therefore BI tools आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी जो हमारा फोकस है उसमें आप ये बात समझ जाएं कि you always have a business problem to solve, ठीक है। The first way you can solve that is using data warehousing. Using data warehousing, you can drill into your data. Drill into your data. सर एक सेकंड, इसको पहले सुन लें। जी जी By analyzing facts across dimensions. Because मैं बार बार across आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि this is exactly what you are going to do in your BI course. That is exactly what you are going to do. You are going to drill into your data by analyzing KPIs across dimensions. ठीक है, मैंने आपको एक हाई लेवल व्यू समझाया कि KPIs क्या होती हैं। KPIs are numerical measures which are linked to your revenue. ठीक है, dimensions क्या होती हैं? They are mostly string based data जिनके अक्रॉस हम KPIs को एनालाइज करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट इन ऑल द डोमेन्स। ओके, दैट्स हमने 2-3 एग्जांपल्स ही पढ़ी हैं। एक हमने सेल्स की एग्जांपल देखी, आज हम फ्लाइट की एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि मेरी टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशंस कितनी हैं, लेकिन मैं ये जनरल क्वेरी कभी भी नहीं दूंगा। मैं क्वेरी इस तरह दूंगा कि मेरी लाहौर से कराची तक की टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशंस कितनी है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो दैट्स द वे एनालिसिस इज डन। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो लिसन टू द वीडियो अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट द हैंग ऑफ दैट, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास पहले वी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर हाउसेज, आज भी है, वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं, उनको काम किया जाता है, लेकिन अब जो एक्चुअल एनालिसिस का काम होता है ना, वो बेसिकली अब BI टूल्स के ऊपर होता है। सही है। तो जो फ्लाइट में हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें क्या था, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ये सही है, अभी तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. लेट मी सी, क्या बच्चे कितने आए हैं? ओह 34, दैट्स गुड। सो लेट मी, सॉरी अबाउट दैट, व्हाट एम आई डूइंग? तो अब मैं आपको दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अली का जो था कि भाई हमारा बिजनेस का एक प्रॉब्लम है। तो ये मेरा सवाल है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम फेसिंग लेट्स से PIA for which you want to make our data warehouse. चलें, अब 2-3 बच्चे मुझे बताएं अपने उस पे अकल पे बताएं कि PIA को क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है। हो सकता है कस्टमर्स उनकी फ्लाइट्स जो कैंसिल, टिकट्स कैंसिल कर रहे हो, रिजर्वेशन। बिल्कुल, एक प्रॉब्लम ये है कि रिजर्वेशंस आर बीइंग कैंसिल्ड मोर फ्रीक्वेंटली। कैंसल्स तो होती हैं, रिजर्वेशंस आर बीइंग कैंसिल्ड
more frequently. अच्छा, अभी यहाँ पे मैनेजर्स को ये नहीं पता कि एक्चुअली कौन कैंसिल कर रहा है, ये जो कैंसिल हो रही है वो किस टाइम पे हुई थी, ठीक है, और कितने बजे हुई थी, कहाँ से हुई थी। बस उनको ये पता है कि भाई रिजर्वेशन कैंसिल हो रही है बहुत सारी। ओवरऑल उनको एसक्यूएल के थ्रू बता दिया गया है कि भाई कैंसिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। दे डोंट नो एनी डायमेंशनल नॉलेज एज येट, ठीक है। और प्रॉब्लम भाई बताएं, शाबाश। सर रिजर्वेशन तो इनिशियली रिजर्वेशन ही कम हो रही है। बुकिंग्स कम आ रही हैं सर। फ्लाइट डिलेज, दैट्स आल्सो वेरी गुड रिस्पांस। फ्लाइट डिलेज, बिल्कुल, लेस बुकिंग्स, फ्लाइट डिलेज, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। अब इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे might be the same problem, they might be two different problems, they might be three different problems. सर ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी ले लें। आई थिंक ले लें प्लेन ग्राउंडिंग्स ड्यू टू टेक्निकल एरर्स। हाँ, अब हम यानी हम अभी यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैल्फंक्शन, हम पूरे कोर्स में भी इसका वेयरहाउस नहीं बनाएंगे, ये तो इतनी ज्यादा हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये तो प्लेन ग्राउंडिंग तो इट्स नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ज्यादा फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम ये रिजर्वेशंस का ही होता है कि भाई पैसेंजर्स हमारे पास कम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ड्यू टू कोविड या व्हाटएवर। बहरहाल चलें, तो दीज आर द पीआई प्रॉब्लम्स। की बात कर रहे हैं तो आप क्रैश की भी बोल सकते हैं सर, कि नंबर ऑफ एयर हाँ चले, क्रैशेस, ये अब क्रैश का भी बोल देते हैं, फिर हम जो है ना वो फाइनेंशियल का भी बोल देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पैसे कम हो गए हैं, फिर हम करप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो इस तरह तो बहुत कुछ हो जाएगा ना। लेट्स टॉक अबाउट द मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फर्स्ट। तो वो बेसिकली क्या है कि रिजर्वेशन कैंसिलिंग हो गई या बुकिंग्स आपकी कम आ रही हैं। अब फ्लाइट डिलेज, मेरा एक्सपीरियंस है, फ्लाइट डिलेज जो है ना वो तकरीबन हर एयरलाइन में हो रहे हैं, कोई भी एयरलाइन परफेक्ट नहीं है और उस पर उनको फाइनेंशियल क्रंच आता है। इफ देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम तो फिर तो उसको हम देख सकते हैं। फिलहाल लेट्स अज्यूम कि दीज आर द टू थिंग्स जो कि हमें देखनी है, सही है। सो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो रिजर्वेशंस, कैंसिलेशन, और जिसकी वजह से लेस फ्लाइट बुकिंग्स हो रही हैं या ओवरऑल ही लेस हो रही हैं, लेट्स अज्यूम कि दिस इज द सेम प्रॉब्लम। देयर इज सम यूनिक रीजन जिसकी वजह से ये दोनों आपके जो है ना वो ऑकर कर रहे हैं, ठीक है। अरे क्वेश्चन था, आपने कल क्विज कंडक्ट किया? जी असल में कुछ बच्चे आपने सर कल क्विज कंडक्ट करा है? जी सर असल में कुछ जो स्टूडेंट्स है ना वो लेट एनरोल हुए हैं, क्या कहलाता है। तो अभी जैसे मैं लेट एनरोल हुआ हूँ, तो मेरा अभी असाइनमेंट का टैब भी नहीं आया है, तो वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दूं तो सर या आप फिर उसकी फिक्र नहीं करें, वो बहुत सारे क्विजेस होंगे, उसकी फिक्र नहीं करें। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द केपीआईज जो कि आप मॉनिटर करना चाहेंगे। शाबाश। किस प्राइस कैटेगरीज की फ्लाइट ज्यादा कैंसिल हुई हैं? What are the KPIs, हाँ, the numerical quantities? जी सर, किस फ्लाइट प्राइस नंबर्स जो कैंसिल हुए हैं। Flight number is not a KPI. Flight number is a string value. PK399, PK307. ओके ओके यस हाँ। जी सर प्राइस ऑफ द फ्लाइट व्हिच वाज कैंसल्ड, क्या आपकी एक्सपेंसिव फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं? नंबर ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल्ड, नंबर ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल्ड, इस तरह। हाँ, ये फ्लाइट्स कैंसिल की बात नहीं हम कर रहे, हम रिजर्वेशन कैंसिलेशंस की बात कर रहे हैं। जी तो वही क्या सर, केपीआई टिकट नंबर बनेगा? से कैंसिल हो रही है। नंबर ऑफ, सर कौन से प्राइस में टिकट्स जो हैं वो ज्यादा कैंसिल हुए हैं, किस प्राइस रेंज की टिकट्स? नहीं, देखें, थोड़ा सा जनरल लेवल पे सोचें।
जनरल लेवल पे व्हाट इज द मोस्ट बेसिक केपीआई दैट यू वांट टू एनालाइज? कितनी रिजर्वेशंस कैंसिल हुई हैं? सही सर। दैट्स इट। जी सर। कितनी रिजर्वेशंस कैंसिल हुई हैं? तो नंबर ऑफ रिजर्वेशंस कैंसिल्ड। अच्छा, अब सवाल, द पॉइंट इज कि this variable is not available in the database, क्योंकि SQL वाले क्यों इसको कैलकुलेट करेंगे? उनकी जरूरत ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक जो रिजर्वेशन कैंसिल हुई उसका डेटा रिकॉर्ड कर देंगे। वो इसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशंस कितनी कैंसिल हुई, जब तक कि उनको कहा ना जाए। तो ये तो हमने डेटा वेयर हाउस के अंदर इसको टोटल करना है। दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू टोटल एंड फाइंड आउट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके अलावा ये तो इससे आ गया, Number of bookings made नंबर each ऑफ day. बुकिंग्स, दैट्स इट, बिल्कुल, नंबर ऑफ बुकिंग्स। बस अभी फिलहाल इस पे रुक जाएं, ठीक है? पैसे कितने थे, क्या था, उसको अभी छोड़ दें, पैसों का मसला नहीं है। व्हाट आर द डायमेंशंस? लोकेशन। व्हाट आर द डायमेंशंस जिसके अक्रॉस मैं इन दोनों फैक्ट्स को एनालाइज करना चाहूंगा? व्हाट आर द Flight डायमेंशंस? information. लोकेशन। जी, सर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन। तो फ्लाइट आ सकता है। फ्लाइट, लोकेशन और सर टाइम। एजेंट्स। ठीक है। Or फ्लाइट, date. कौन सी फ्लाइट का डेटा, कौन सी फ्लाइट थी जिसकी रिजर्वेशन कैंसिल की गई? अब उसके अंदर सोर्स भी आ जाएगा, डेस्टिनेशन भी आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आ जाएगा कि उसका डिस्टेंस कितना है सोर्स टू डेस्टिनेशन का। व्हिच फ्लाइट वाज तो टाइम कैंसिल्ड? So I need a flight dimension table. And what else? टाइम डायमेंशन टेबल सर, किस टाइम पे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, किस टाइम पे कम फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हाँ, I might go for both date and time. सर पैसेंजर्स की डिटेल नहीं चाहिए होगी जिन्होंने कैंसिल किया? Sorry? जिन पैसेंजर्स ने फ्लाइट कैंसिल की उनकी भी डिटेल चाहिए होगी। हाँ, पैसेंजर डेटा जिन्होंने फ्लाइट कैंसिल की है, तो सर तो पैसेंजर कस्टमर्स की डायरेक्ट। हाँ, कस्टमर डेमोग्राफिक्स जिन्होंने फ्लाइट कैंसिल की है, मसलन उनकी एज क्या थी, एज क्या थी, जेंडर क्या था, दैट्स देयर आर द टू बेसिक थिंग्स जिन्होंने फ्लाइट कैंसिल की है। तो मतलब अगर किसी जेंडर ने ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की है ये मालूम करें, किस एज ग्रुप ने ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की है ये मालूम करें। दैट इज समथिंग दैट यू वांट टू ड्रिल डाउन इनटू। ठीक है, तो नाउ यू बिगिन टू सी के जब मैं एक फैक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो ये बिल्कुल बात पक्की है कि आई एनालाइज द फैक्ट्स अक्रॉस द डायमेंशंस। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अक्रॉस का है। मैं कभी भी अकेला केपीआई को एनालाइज नहीं करता। इट डज नॉट मेक सेंस, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू से कि मेरी टोटल रिजर्वेशन इतनी कैंसिल हुई है। नो वन वुड नो व्हाट टू डू विद दैट, बट पीपल विल आस्क कि भाई कहाँ कैंसिलेशन ज्यादा हुई है, सही है, कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, ये सवाल पूछे जाएंगे। तो देयरफॉर ये सवालात के जवाब आपको मिलेंगे डायमेंशन से। सही है? इज दिस थिंग क्लियर अप टू नाउ? यू कैन डू दिस सेम थिंग for any data warehousing scenario that you have a problem. Number one, you identify the facts जो कि आपने उसमें करने हैं, ठीक है, और फिर ये सोचें कि किन dimensions के across मैं उस fact को करता हूं। जैसे अली ने कहा कि for that you need the background knowledge. तो पहला काम आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले अपनी इस पूरी द वे द एयरलाइन इज रन, आप सबसे पहले इसका पूरा जो है ना यू गेट दैट नॉलेज कि हाउ फ्लाइट ऑपरेशंस किस तरह रन किए जाते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम कैसे रन किया जाता है। यू गेट द नॉलेज फॉर दैट। वंस यू हैव द नॉलेज फॉर दैट देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो कि इस वक्त उनके पास डेटाबेस में है और उनकी प्रॉब्लम क्या है। सब चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी जब आपका अपना डोमेन नॉलेज होगा। अगर आपका अपना डोमेन नॉलेज नहीं होगा देन you might not be able to analyze the data properly, neither make a good warehouse nor do the BI properly, अगर आपके पास अपना डोमेन नॉलेज नहीं होगा। So that's the first thing, you must have a problem, you must have the domain knowledge for that, then you identify the problem, you identify the facts or the KPIs, and then you identify कि किसके across it makes the most sense to analyze the problem, and then you make the warehouse.
सही है? इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चले मैं अभी आपको इस बार का जो असाइनमेंट है वो हल्का होगा. आई विल गिव यू 3 और 4 सिनेरियोज जिसमें आपने यही एग्जैक्टली ये चीज आपने मुझे रेप्लिकेट करके बतानी है कि इस डोमेन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है और किन फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स हमारे लिए जरूरी हैं या केपीआईज, और किन डायमेंशंस के क्रॉस इनको हम एनालाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. तो आई एम गोइंग टू गिव यू 4 to 5 डिफरेंट सिनेरियोज, तो आप उसको फिर कर लीजिएगा. सर साथ में आप क्विज 1 की भी अगर वो बढ़ा दें, क्योंकि वही जिनका सर लेट एनरोलमेंट हुई है और सर इशू ये एलएमएस है का हमने टैब कि भी खुला हुआ था। बात सुने, क्विज 1 को अभी भूल जाएं, आप इसकी फिक्र नहीं करें. आप आगे की तरफ नजर रखें, पीछे देखेंगे तो आगे टक्कर लग जाएगी. ठीक है, तो जस्ट कीप ऑन लुकिंग इन योर फ्रंट एंड मूव. इट्स नॉट इजी फॉर मी टू मैनेज, यू नो. वंस इट इज सबमिटेड, इट इज सबमिटेड. कोई मसला नहीं है, इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला. आपके ग्रेड पे कोई इतना खास फर्क नहीं आएगा. The project is what you have to work on in a very good way. That's what you need to keep in mind. Project and the assignment obviously, ठीक है. सर सर आप जो सर क्विज अपलोड करते हैं सर, एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप जो है डेडलाइन थोड़ी ज्यादा रखा करें सर, क्योंकि आपने आई गेस 12 आवर्स की दी थी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ, मैं I do understand that, but this was only for the Tuesday's class. I should have given that day before yesterday. लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो गया, तो इस वजह से वो my apologies. पर इस क्विज के बारे में आप इतना परेशान ना हो, ठीक है. थैंक यू सर. So I'm going to write down a few things here. One row of the dimension table represents one entity. For example, one date, 1 hour, 1 customer, again 1 location, 1 flight, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है. 1 product. सर ये वही कॉन्सेप्ट है ना कि एक उसमें एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती है. हाँ, मतलब एक रो में अगर आपके पास प्रोडक्ट का डायमेंशन टेबल है, 1 रो ऑफ द डायमेंशन टेबल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 1 प्रोडक्ट. ठीक है, एक प्रोडक्ट की Yes. इंफॉर्मेशन एक रो में आ जाएगी. ऑल प्राइमरी कीज ऑफ डायमेंशन टेबल्स become the foreign key in fact table. ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना. ये तो सिंपल डेटाबेस का असूल है, अगर वो कनेक्टेड है उसकी प्राइमरी की या फॉरेन की आ गई. ठीक है, इन द फैक्ट टेबल after the foreign keys we have the facts या KPIs कह लें. ये चीज बस याद रखें, ठीक है. डायमेंशन टेबल एनालाइज कर लिए, डायमेंशन टेबल में डेटा डालें, उसमें आपको जैसे अली ने कहा कि पीछे से OLTP से डेटा उठा के आपको वेयरहाउस में लाना होगा डायमेंशन टेबल्स में. उसके बाद फिर आप फैक्ट टेबल को पॉपुलेट करेंगे. ठीक है, तो इसके मैं बारे में एक और चीज लिख देता हूं. लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल. अब जो हमने एग्जांपल देखी है, लेट मी सबसे पहले मैं इस फैक्ट को देख रहा हूं, नंबर ऑफ रिजर्वेशंस कैंसिल्ड. तो इसमें मैं सबसे पहले लेट्स से कि मैं सिर्फ 2 डायमेंशन टेबल्स लेता हूं, एक फ्लाइट का और एक डेट का, या चलो मैं 3 ले लेता हूं, कस्टमर का.
So I have this flight dimension table, I have the date dimension table, I have the customer dimension table. बीच में फैक्ट टेबल होता है और ऑब्वियसली ये मैं आपको बता दिया है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फैक्ट टेबल है। One row of the flight table represents जी One flight, one flight. Here one date, one date और here one customer. one customer, ठीक है। अब हो क्या कि एक एंड अगर मैंने एनालाइज करनी है नंबर ऑफ रिजर्वेशंस कैंसल्ड, तो वन रो ऑफ द फैक्ट टेबल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट वन कैंसिलेशन। सही है, समझ में आई बात की? Yes, One sir. row of the fact table is going to represent one flight cancellation which has been done on a particular date for a particular flight by a particular customer. ठीक है। अब अगर मैं फैक्ट टेबल की रो देखूं, चलें फैक्ट टेबल के कॉलम्स बताएं मुझे, शाबाश जल्दी करें। पहला कॉलम क्या है फैक्ट टेबल का? Sir, flight number. flight, नहीं, इसकी अपनी प्राइमरी प्राइमरी की की, जो अपनी प्राइमरी की, ठीक है। अब फॉरेन कीज को लेकर आए, पहली फॉरेन की कौन सी होगी? फ्लाइट flight number, फ्लाइट की फॉरेन की, फ्लाइट नंबर नहीं, फ्लाइट नंबर भी हो सकता है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हम टिपिकली उसको नंबर्स रखते हैं। प्राइमरी की इसको हम ठीक है। नंबर्स, इंक्रीमेंटल नंबर्स। तो फ्लाइट की फॉरेन की, अगली प्राइमरी की, अगली फॉरेन की, date की foreign, डेट की फॉरेन की, और फिर कस्टमर कस्टमर की फॉरेन की। अब आप देखें, मैंने आपसे कहा कि दिस रिप्रेजेंट्स वन रिजर्वेशन कैंसल्ड which was the first reservation कैंसिल हुई which was for a particular flight जिसका डेटा फ्लाइट टेबल में है, on a particular date जिसका सारा डेटा डेट टेबल में है, for a particular customer by a particular customer जिसका सारा डेटा कस्टमर टेबल में है, and obviously this is one reservation, so I can create a variable here which is called number of reservation cancelled and I can put that as 1. एक काउंट मैंने किया ना, ये मेरा फैक्ट ये होगा बेसिकली, जिसको मैंने BI टूल्स में एनालाइज करना है। ये कितनी रिजर्वेशन कैंसिल हुई? ये एक रिजर्वेशन मेरी कैंसिल हुई है। इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. सही है? ये तो एक ही होगी ना, आपने हाँ, एक ही रो है एक सर, ही तो होगी। इसमें तो एक रो में तो नंबर 1 ही आएगा, ये मैंने वैसे एक्स्ट्रा बना दिया है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं दूसरी रिजर्वेशन कैंसिल हुई, वो जनाब हुई लाहौर टू न्यूयॉर्क फ्लाइट की, वो हुई जनाब 2 महीने पहले, और वो की किसी कस्टमर, पर्टिकुलर कस्टमर जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, और जो है फिर वो दैट इज आल्सो द वन अदर रिजर्वेशन। ये आ गए। अब इस तरह मेरे पास फैक्ट टेबल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? All the cancellations I will put them as soon as a reservation gets cancelled. I will create an entry for that in the fact table, और ये सारा पहले डेटा सारा मेरा उसमें आता है IT सिस्टम्स में, वहां से फिर मैं इसको इंपोर्ट करके लाता हूँ यहाँ पर डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो पूरी पाइपलाइन पाइथन वगैरह में बनी होती है, तो ये ऑटोमेटेड आपका डेटा वेयरहाउस अपडेट होता रहता है, ठीक है। समझ में आ गई बात की? yes sir, Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे कहेंगे कि जी अगर फर्ज करें कि मैंने ये बना लिया, मैंने फ्लाइट की जितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी उनकी इंफॉर्मेशन मैंने फ्लाइट टेबल में डाल दी, जिस डेट्स पे फ्लाइट कैंसिल हुई थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दी, जिन जिन कस्टमर्स ने की थी उनका डेटा यहाँ डाल दिया, और जो रिजर्वेशन की मॉडलिंग थी वो मैंने फैक्ट टेबल में कर ली। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ठीक है, तो अब ये sir अब करना है, analyze, अब एनालाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप बता दें, बस ये आखिरी बात है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशंस कैंसल्ड, ध्यान रखिएगा जरा, बाय मेल्स। सर हम यहाँ पे by काउंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर डेटा जो है उसमें cancelled by freedom Across- teenage males in last 3 months. sir custom across customer और date की हाँ, टेबल से अब मैं करेंगे आपको काम। बता रहा हूँ कि ये फैक्ट टेबल में लेट्स से कि मेरे पास 6000 कैंसिलेशंस का डेटा है, 6000,
उसमें से कुछ कैंसिलेशंस मेल्स ने की हैं, कुछ फीमेल्स ने की हैं, कुछ टीनेज मेल्स ने की हैं, कुछ ओल्ड मेल्स ने की हैं। अब उन 6000 रोज में लेट्स से कि मेरे पास 300 रोज हैं, 300 कैंसिलेशन है जो टीनेज मेल्स ने की हैं। सही है? समझ में आ रही बात की? यस सर। टोटल 6000 कैंसिलेशंस हुई हैं, उसमें से 300 have been cancelled by teenage males in the last 5 years, या in the last 1 year for example, in the last 1 year. लेकिन in the last 3 months में सिर्फ let's say कि 98 हुई हैं। सही है? तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? 98. 98 will be the answer. And how will that be computed? That is computed by using the technology which we used to call the OLAP cube. OLAP cube क्या करता था या करता भी है अभी के it calculates the total across all possible combinations of dimensions. It calculates the total that you want to total across all possible combinations of dimensions. यानी अगर मैं कहूँ कि इस फ्लाइट का इस टाइम में कितनी कैंसिलेशन हुई वो आपको टोटल करके पहले से बता देगा। मैं आपसे कहूँ कि फीमेल्स ने टोटल कितनी की वो टोटल करके बता देगा। आप डायमेंशंस के जिस कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करेंगे वो उसका जो है ना आपको टोटल करके बता देगा। समझ में आ रही बात की? तो ओलैप क्यूब बेसिकली इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन टॉप ऑफ द स्टार स्कीमा। जब आपने स्टार स्कीमा कंप्लीट कर लिया तो ओलैप क्यूब आता है, ऊपर से अपने कदम जमाता है, सारे टोटल्स कंप्यूट करता है और आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता है। इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। क्यूब लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें नुकसान क्या है? सर बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए होगी और स्पेस ज्यादा आएगा, कंज्यूम होगा। मैं लिख रहा सर हूँ कि टाइम भी ज्यादा लगेगा फॉर नहीं, कैलकुलेशन। अब देखिए अब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें इतनी अच्छी हो गई कि रैम वगैरह बढ़ गई। अब ओलैप क्यूब बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। ओलैप क्यूब कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ KPIs जो कि मुझे चाहिए। ये मेन चीज ये है, across all possible combinations। हाँ, आप ये कह सकती हैं कि relatively टाइम ज्यादा लगेगा, ये बात सही है। across all possible combination of dimensions। तो what is the advantage of that कि मेरे पास हर चीज हर वक्त पड़ी हुई है। what is the disadvantage? तो जिस वक्त जनरेट कर रहे होंगे ओलैप क्यूब सिर्फ उस टाइम पे एक दफा रन टाइम ज्यादा लगेगा। unnecessary डेटा आ जाएगा सर, बहुत unnecessary सारा information because I don't want knowledge for all. For example, मैंने let's say कि I will never want to analyze reservations made by female customers for some reason. I'm only going to target teenage males for some reason for a particular time. तो females की information फिर मेरे लिए काम की नहीं है। Let's say कि मैं किसी एज ग्रुप को टारगेट करूंगा ही नहीं, तो उस एज ग्रुप के क्रॉस मैंने एनालिसिस करा के क्या करना है? तो it is giving me information which I don't even want and it is wasting my resources. अच्छा, दूसरा मसला ये है कि इफ आई अपडेट द वेयरहाउस, अगर मैं अपडेट वेयरहाउस करूंगा तो मुझे ओलैप क्यूब भी पूरा का पूरा अपडेट करना पड़ेगा। दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम जो कि मेरे लिए खड़ी है। ठीक है, तो आई विल राइट दैट डाउन अगेन। आई विल राइट दैट डाउन। इफ आई अपडेट द स्टार स्कीमा which I update like regularly, maybe once a week or every day, then I have to update the OLAP cube also। जाहिर सी बात है, OLAP cube बनता ही उसके ऊपर है। ठीक है, तो आपने कोई चीजें चेंज की, आपका नया डेटा आया तो OLAP cube फिर दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सर OLAP क्यूब में आप सिलेक्ट नहीं कर सकते ना कि मतलब सिर्फ ये वाली कॉलम्स लो या एक पर्टिकुलर डायमेंशंस लो। You can OLAP cube का जो आउटपुट है that is actually a BI like output, but the point is that there is too much data and it does not offer me much flexibility like a BI tool does। जिस तरह से BI tool मुझे flexibility देता है
डिजाइन करने की, तो वो ओलैप क्यूब मुझे नहीं देता। ओलैप क्यूब में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उस वक्त बीआई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? But I had to browse through the OLAP cube with a lot of difficulty. That is the main point that you need to understand. So I'll just write that down. I had to browse through the OLAP cube with a lot of difficulty. क्यों जी डिफिकल्टी क्यों थी? डिफिकल्टी इसलिए थी कि नॉट इंटरेक्टिव, डिफिकल्ट टू ब्राउज। जैसे आजकल हम बीआई टूल्स में फिल्टर्स यूज कर लेते हैं, तो उस वक्त भी फिल्टर्स थे, लेकिन वो कुछ टूल्स में थे, कुछ टूल्स में नहीं थे। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा इंटरेक्टिवली उसको मैनेज करना जरा मुश्किल था। डिफिकल्ट टू ब्राउज, OLAP cube is very heavy. So time taking. और उसका एंड रिजल्ट ये था कि टू मच कॉग्निटिव एफर्ट। तो अब आपको बस ये मैं लास्ट बात कर रहा हूं। अब आपको समझना सिर्फ ये है कि अब आप मुझसे कहेंगे कि ये बीआई टूल्स फिर कहां से आए हैं। ठीक है, बीआई टूल्स जो आए हैं, तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो कि बीआई टूल्स ने सॉल्व की है। बीआई टूल्स ने OLAP क्यूब के कॉन्सेप्ट को खत्म नहीं किया। बीआई टूल्स ने सिर्फ ये कहा है कि व्हाटएवर यू नीड, put that on a chart and make it more interactive so that you can do it yourself rather than turning to us for making an OLAP cube and giving it to you. यानी इससे बजाय कि मैं आपको इतना बड़ा ब्लॉक उठा के दे दूं कि इसको ब्राउज कर लो, मैं आपको फैसिलिटी देता हूं कि अपना ब्लॉक खुद बना लो जैसे उसको बनाना चाहते हो। डोंट मेक द होल OLAP cube, but just construct the part of the OLAP cube which you want to construct by the use of the BI tools. That is what you need to understand in business intelligence, right? ये बात समझ में आ गई है कि अब मैं आपको पूरा क्यूब नहीं दे रहा, मैं आपको स्टार स्कीमा भी नहीं दे रहा। बीआई टूल्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि वो इंटरनली खुद स्टार स्कीमा बिल्ड करके यूजिंग डिफरेंट इंटरेक्टिव चार्ट्स, इट कैन अलाउ यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू ब्राउज योर डेटा इन अ बेटर वे, टू अंडरस्टैंड योर the limitations in your data, understand the problems in your data. जो काम आप वेयरहाउसिंग से कर रहे थे वो काम आप बीआई टूल से होता है। अब आपको स्टार स्कीमा बनाने की जरूरत भी नहीं है, OLAP क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है। just give the data to the tool. It is going to formalize the concept of a star schema itself. The BI tool is going to form the star schema now. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेयरहाउसिंग क्या होती है। If you don't know what are measures and you don't know what are dimensions, you cannot do BI. That is why मैं इसमें वेयरहाउसिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। KPIs across dimensions, KPIs across dimensions, that's what you need to analyze. पहले ये काम सारा वेयरहाउसिंग के थ्रू होता था, उसमें हम स्टार स्कीमा बनाते थे, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी, वेरी रिसोर्स इंटेंसिव। उसके बाद हम उसके ऊपर OLAP क्यूब बनाते थे, अगेन दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, इट आल्सो टेक्स लॉट ऑफ स्पेस। और फिर उसको ब्राउज करना उससे ज्यादा मुश्किल काम था, बिकॉज इट वाज गिविंग मी टू मच एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हिच आई डिड नॉट वांट। तो अब बीआई वालों फिर बीच में आए, तो बीआई वालों ने फिर ये बात की कि लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू द यूज ऑफ बीआई टूल्स। द बीआई टूल इज गोइंग टू फॉर्म द स्टार स्कीमा। द यूजर मस्ट नो व्हाट्स वेयरहाउसिंग, कि मेजर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं। हम आपको डिफरेंट चार्ट्स दे देते हैं, एंड बेस्ड ऑन दोस चार्ट्स you can form your different star schemas and you can do any analysis you want. So instead of browsing the whole OLAP cube, you can build your own small OLAP cubes through the use of the charts जो कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में जितने चार्ट्स हैं वो सिर्फ उसके लिए नहीं है कि बड़ा मजा आ रहा है देख के। Every chart is going to help you to do data warehousing. Every chart is going to help you to do data warehousing. जैसे मैंने आपको उस दिन वो उस पे दिखाया था। अब बस ये आखिरी बात है, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। ये सर क्लास भी है सर, दूसरी क्लास शुरू हो गई है हमारी। 10 बज गए सर।
आप सर नेक्स्ट क्लास में कर लें। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूंगा। अब जैसे ये चीज है, ठीक है, इस चीज में क्या हो रहा है, दिस इज वेयर हाउसिंग कि आई एम एनालाइजिंग, आई डोंट नो व्हाट वी वर एनालाइजिंग द इंटरनेट पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री। अब ये मैं एक्चुअली वेयर हाउसिंग ही कर रहा हूँ, समझ में आ गई बात की? Is this thing clear? But now I am doing that on a very interactive chart. I'm not making a very big OLAP cube for that. Is this thing clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, I will upload the video. I'll give the assignment. आप उसका करें और इसको जितना प्रैक्टिस कर लेंगे written में तो it will be good for you. ठीक है? Thank you very much. जज़ाकल्लाह। सर जो फर्स्ट लेक्चर कहाँ अपलोड किया आपने? वो मैंने दिया है उस पे ग्रुप, अभी दोबारा दे देता हूँ आपको। थैंक यू सर। सर एक सजेशन है, वो एक सजेशन है, जी वन ड्राइव पे आप अपलोड करें। चलें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर।